Bismillahirrahmanirrahim. This is the third lecture in the series of approach to pain abdomen. We have discussed how to approach patient with pain abdomen, then how to construct the diagnosis of patient presenting with pain abdomen. Now we will discuss the management of pain abdomen in emergency and in the OPD. So this is a very algorithmic approach, so you don't have to bother a lot about the text, the theoretical issue. This is a targeted approach we will discuss today, inshallah. This is the basic algorithm of pain abdomen in emergency department. So the patient presented to you with pain abdomen, you will follow the same approach we discussed in previous lectures. You will take the history, you will examine the patient, you will order the relevant investigation, and you will start the treatment. In emergency, the difference is you have to do all four things simultaneously. So this is a very team approach, a very targeted approach, and a very collaborative approach to manage the patient in emergency department. So what features you have to focus specifically in emergency while taking history and examination and ordering investigation and treating the patient. So these are the red flag signs that I have written over the right side. So sudden onset of severe pain that wakes the patient from sleep, along with tenderness. The patient specifically tells you, okay, I have pain on touching the abdomen, on touching my belly, and stiffness. So मरीज़ आपको बताता है कि शदीद दर्द है. बाज़ औक़ात पेशेंट कहते हैं कि रात को दर्द शुरू हुआ और मेरी नींद से आँख खुल गई, और उसके साथ पेट में अकड़ाव है और हाथ लगाने से भी दर्द होता है. तो इस तरह से पेशेंट आपको बताएगा, या ये आपने इंक्वायर करना है पेशेंट से. सेकंड थिंग इज़ वॉमिटिंग विद इंटॉलरेंस टू इनटेक, कि सवेयर वॉमिटिंग हो और साथ पेशेंट कुछ खा ना पा रहा हो. एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन. एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ आए पेशेंट आपके पास कि वो कहे कि डॉक्टर साहब मेरा पेट पहले से फूल गया, और विजिबल डिस्टेंशन आपको जर्नल लुक पे फील भी हो रही हो. या एंड सेकंड थिंग इज एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन. एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन मींस कि पेशेंट हैजंट पास एनी स्टूल और फ्लेटस, कि मरीज़ कहे कि लास्ट 12, 24, 36 आवर्स से ना उसने स्टूल पास किया है, ना ही कोई फ्लेटस पास किया है. ब्लड इन द वॉमिटस, उल्टी के अंदर खून आए, या ब्लैक टेरी स्टूल्स, मलीना हो पेशेंट को, ब्लडी डायरिया हो पेशेंट को. प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी के साथ पेशेंट आ जाए आपके पास सवेयर एब्डोमिनल पेन के साथ, या एब्डोमिनल पेन विद टेंडरनेस के साथ, या एब्डोमिनल पेन विद टेंडरनेस एंड स्टिफनेस के साथ, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग के साथ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन के साथ. If the patient is pregnant, that automatically turn things to manage on emergent lines. So आपने उसको consciously देखना है कि कोई red flag मिस ना कर रहे हो आप. Jaundiced हो पेशेंट, फीवर हो उसको, वेट लॉस हो पेशेंट को, डिस्यूरिया हो, फ्लैंक पेन हो और फीवर हो साथ, और कंटेक्ट विद ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री हो, या पेशेंट एक्टिव टीबी का पेशेंट हो. भी टीबी का पेशेंट है आपके पास, सवेयर पेन एब्डोमेन के साथ आ गया, तो ये भी आपने एमरजेंसी ही कंसीडर करना है इसको जो है. सो दीज आर द रेड फ्लैग साइंस इन द हिस्ट्री. हिस्ट्री आप उसी पैटर्न पे लेंगे जिस पैटर्न के ऊपर हमने डिस्कस किया था. यू विल लोकलाइज द पेन, आप लोकीरा पूरा करेंगे उसका, लोकेशन, क्वालिटी, ऑनसेट, इंटेंसिटी, रेडिएशन, एग्रीवेटिंग फीचर्स, एलिवेटिंग फीचर्स, and then you will focus on the associated symptoms, because we have discussed before that without asking the associated symptoms you cannot reach the or you cannot construct the differential diagnosis, and you specifically focus on red flag signs. These are the red flag signs that you have to keep in mind while taking history in emergency department. Then simultaneously आप history ले रहे हैं, आप अपने colleague से कहें कि वो examination करे, या आप साथ साथ examination start कर दें. आप अपने नर्स से कहें कि वो वाइटल्स ले लें. जनरली हिस्ट्री लेते हुए आप देख रहे हैं कि पेशेंट इज़ एंशियस लुकिंग, ही इज़ स्वेटी, ही इज़ ड्राउजी, ही इज़ पेल, ही इज़ जॉन्डस्ड, तो आपको काफ़ी हद तक क्लू मिल जाएगा अपने डायग्नोसिस की तरफ. ऑन एग्जामिनेशन अगर पेशेंट टॉक्सिक है या सेप्टिक लग रहा है आपको, उसका हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, बीपी जो है उसका वो 100 सिस्टोलिक से कम है, टेम्परेचर उसका 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है,
या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, GCS उसका कम है, 12/15 है, यूरिन आउटपुट उसका लो हुआ है. Or on abdominal examination, you find a localized or generalized tenderness and guarding. That is a red flag sign that points toward the surgical abdomen. Or you find any specific abdominal mass in any quadrant. हेपेटोमेगैली मिलती है आपको, या और विजरोमेगैली मिल जाती है, स्प्लीनोमेगैली मिल जाती है आपको, नेफ्रोमेगैली मिल जाती है आपको. Then you have to do the pelvic examination and the rectal examination. स्पेशली अगर फीमेल आती है आपके पास एंड शी इज़ प्रेग्नेंट, इवन अगर वो प्रेग्नेंट नहीं भी हैं और वो लोअर abdominal पेन की कंप्लेंट के साथ आई हैं या जनरलाइज abdominal पेन टेंडरनेस के साथ आई हैं, यू हैव टू डू द पेल्विक एग्जामिनेशन, चूँकि यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर. अगर पेशेंट को एडिनेक्सल टेंडरनेस आ जाती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो दैट पॉइंट्स टूवर्ड द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़. अगर वो प्रेगनेंसी नहीं है, अगर प्रेगनेंसी है तो दैट इवन पॉइंट्स टूवर्ड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी. हाउएवर इन प्रेगनेंसी हम अवॉइड करते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन. अर्ली ट्राइमेस्टर के अंदर वो यूजुअली अवॉइड पेल्विक एग्जामिनेशन. तो आपने यूजुअली प्रेगनेंसी के अंदर आपने नहीं जाना है पेल्विक एग्जाम के ऊपर जो है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो आप एडिनेक्सल मोशन टेंडरनेस के लिए या पेल्विक फाइंडिंग्स को देखने के लिए आप पेल्विक एग्जाम करें. देन रेक्टल एग्जामिनेशन, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आमतौर पे मिस कर देते होते हैं, एमरजेंसी के अंदर नहीं करना है. एमरजेंसी में पेशेंट पेन एब्डोमेन के साथ आता है, यू जस्ट नीड अ ग्लव्स एंड लिग्नोकेन जेल, और आप प्रॉपर प्राइवेसी मेंटेन करके रेक्टल एग्जाम लाजमी कर लें. बाज़ औक़ात आपको मैस मिल जाता है पेशेंट के अंदर. हमने अक्सर पेशेंट देखे हैं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के, मैस होता है और उसके साथ वो आपके पास एब्डोमिनल पेन और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आ जाते हैं आपके पास पेशेंट जो है, या ब्लड स्टेन स्टूल आपको मिल जाता है. उससे कई क्लूज आपको मिल सकते हैं आपके डायग्नोसिस की तरफ जो है. सो बेस्ड ऑन दिस हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन आप अपना एक डिफरेंशियल कंस्ट्रक्ट करते हैं एमरजेंसी के अंदर जो है. सो आई हैव रिटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. ये उसी पैटर्न पे है जिसमें हम पहले डिस्कस करके आए. देयर इज नथिंग न्यू, कोई चीज़ न्यू नहीं है इसके अंदर जो है. सो इफ द पेशेंट हैज डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन है, तो फर्स्ट यू नीड टू रूल आउट इज पेरिटोनाइटिस. पेरिटोनाइटिस में किस तरह का दर्द होगा, जैसे हमने डिस्कस किया, स्वेयर पेन होगी, टेंडरनेस होगी, साथ गार्डिंग होगी, वॉमिटिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपके पास. किसी हद तक थोड़ी बहुत एब्डोमेन टेंस या डिस्टेंडेड हो सकता है, किसी हद तक कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है पेशेंट को, जो के साथ आइलियस होता है पेरिटोनाइटिस के साथ जो परफोरेटेड गट आइलियस में चली जाती होती, या उसको थोड़ा बहुत ब्लडी डायरिया हो सकता है. तो इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग पेरिटोनाइटिस, देयर आर 3 प्रीडोमिनेंट काजेज, स्पेशली इन आवर सेटअप. फर्स्ट इज DU परफोरेशन. आप उससे पूछ लें कि पुराना कोई मैदे की तकलीफ, मैदे का दर्द तो नहीं रहता था आपको, या पर एब्डोमिनल पेन तो नहीं रहती थी. टाइफाइड परफोरेशन, पेशेंट को पिछले 1-1.5 हफ्ते से बुखार तो नहीं चल रहा था, हाई ग्रेड फीवर जो जिसके लिए वो ऑन एंड ऑफ की मेडिकेशन ले रहा हो. ट्यूबरकुलस परफोरेशन, यस, प्रीवियस हिस्ट्री लो ग्रेड फीवर की, या नाइट स्वेट्स की, या वेट लॉस की, या एब्डोमिनल सिम्टम्स की, अल्टर्ड बावल हैबिट्स की, ब्लडी डायरिया की, ये तो नहीं आ रही थी पेशेंट को. तो ये आपको अंडरलाइंग एटियोलॉजी की तरफ पॉइंट करेगा. ये 3 डिफरेंशियल्स आपने लाजमी ज़हन में रखने हैं जब आप पेरिटोनाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं उस पेशेंट के अंदर जो है. पेरिटोनाइटिस इज़ अ सर्जिकल एमरजेंसी. इमीडिएटली आपने पेशेंट का एक्सरे चेस्ट एब्डोमेन इरेक्ट करवाना है, और अल्ट्रासाउंड के लिए कॉल करना है, और साथ ही सर्जिकल एवेल्युएशन करवानी है उस पेशेंट की आपने जो. Then bowel obstruction, second number, especially if the patient has colicky abdominal pain with abdominal distension and absolute constipation, और साथ उसको intractable vomiting शुरू हो गई है, तो second thing जो आप suspect करेंगे वो bowel obstruction करेंगे. Again you will call for surgical evaluation. आप x-ray chest abdomen pelvis erect order करेंगे और ultrasound करवाएंगे उस patient का फौरन से. Third thing is ruptured abdominal aortic aneurysm. This is very catastrophic condition. Patient आपके पास toxic आएगा, टैकिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगी, फीवर हो सकता है पेशेंट को, ड्राउजी होगा, लो यूरिन आउटपुट होगा, एंशियस स्वेटी ड्राउजी होगा पेशेंट आपके पास जो है. आपको पल्सेटाइल मैस फील हो रहा होगा. यू विल गेट एन एब्डोमिनल मैस दैट इज पल्सेटाइल. एपिगेस्ट्रिक मैस हो सकता है, पेरिम्बलाइकल मैस हो सकता है.
तो पल्सेटाइल मैस के साथ इन फाइंडिंग्स के साथ पेशेंट आ जाए आपके पास, तो यू विल ऑलवेज सस्पेक्ट कि ये रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म तो नहीं है। आप अर्जेंट उसका अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर फ्लो करवाएं और सर्जिकल एवेल्युएशन कॉल करें आप फ़ौरन से पहले, क्योंकि इसकी रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की बहुत हाई मोर्टेलिटी होती है, अप टू मोर देन 80% आप कह सकते हैं अगर ये टाइमली इंटरवीन ना हो तो। देन स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, दिस इज अगेन वेरी कॉमन condition that we encountered in surgical ER, कि एक पेशेंट है उसको पैराम्बलाइकल हर्निया था, उसको इंग्वाइनल हर्निया था, फेमरल हर्निया था, अब स्ट्रैंगुलेट होके आ गया आपके पास जो है। तो आपने देखना है, पूछना भी है और देखना भी है कि कोई विजिबल स्वेलिंग आपको इंग्वाइनल एरिया में नज़र तो नहीं आ रही है, फेमरल एरिया में या पैराम्बलाइकल कोई विजिबल एब्डोमिनल स्वेलिंग तो नहीं है। और उसके साथ अब पेशेंट आपके पास आ जाता है कॉन्स्टिपेशन के साथ, डिस्टेंशन के साथ, वॉमिटिंग के साथ और स्वेयर पेन ओवर द स्वेलिंग। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया काफ़ी पेनफुल होते हैं, तो वो हर्निया इंटरनल हर्निएशन भी हो सकती है, वो भी स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है, तो वो पेशेंट आपके पास बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स के साथ आएगा। देन इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, यस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटेस्टाइनल इस्कीमिया इज पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू फिजिकल फाइंडिंग, कि उसको दर्द होगा लेकिन दर्द उसकी फिजिकल फाइंडिंग से काफ़ी ज़्यादा होगा। पेशेंट आपको सवेयर एब्डोमिनल पेन या पैराम्बलाइकल पेन की कंप्लेंट करेगा, स्पेशली स्टार्टेड विद इन हाफ आवर टू 1 आवर आफ्टर टेकिंग मील। सडन भी स्टार्ट हो सकता है, खासतौर पर एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया का पेशेंट, इट्स एन एक्यूट एमरजेंसी, तो आपके पास उसी वक्त भी आ सकता है पेशेंट। उसमें आपने कोमॉर्ब्स लाजमी, अगर आपके जहन सस्पेक्ट कर रहा है कि इट माइट बी इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, पेन बहुत ज़्यादा है पेशेंट को, उसको वॉमिटिंग भी हो रही है और टॉक्सिक लुकिंग भी है, और लेकिन एब्डोमेन इतना टेंडर नहीं है, एब्डोमेन सॉफ्ट है रिलेटिवली जो है, कोई विज़रोमेगैली नहीं है, और एंड यू आर सस्पेक्टिंग इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, तो उसके कोमॉर्ब लाजमी देख लें। ज़ाहिर इंटेस्टाइनल इस्कीमिया मोस्ट कॉमनली एम्बोलिक फिनोमेना की वजह से होता है, तो दैट पेशेंट माइट हैव कंकॉमिटेंट एट्रियल फिब्रिलेशन, might have concomitant cardiac disease and might have concomitant atherosclerotic disease, कोई peripheral vascular disease हो, उसको कोई history of CVA हो, history of ischemic heart disease हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपने ये concomitant histories लेनी है। smokers, chronic smokers, heavy smokers जो होते हैं वो आपके पास acute mesenteric ischemia के साथ आ जाते हैं। तो fourth thing that you might be suspecting in patient with diffuse abdominal pain in emergency is intestinal ischemia। then आपके पास medical causes आ जाती हैं, DK and acute renal insufficiency, तो ये आपने रखना है। ब्लड शुगर इन पेशेंट्स की लाजमी करवा लेनी है आपने फ़ौरन से पहले, वो DK के अंदर आपको हाई मिलेगी, एक्यूट renal insufficiency के अंदर आपको लो मिलेगी। देन ब्लड वर्कअप आप ऑर्डर कर देंगे, वो आपने सब में करना है, ब्लड वर्कअप आपने सब में करवाना है, CBC, ब्लड शुगर, RFTs, LFTs, PT, APTT, ब्लड गैसेज, लाइपेज एंड इवन लैक्टेट लेवल्स जो है, ये सब में ऑर्डर करेंगे आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एटियोलॉजी। जो सर्जिकल काजेज हैं उसमें भी हमने सिस्टेमिक कंडीशन देखनी होती है, पेशेंट की मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, मल्टी ऑर्गन फेलियर में तो नहीं जा रहा है, ड्यू टू हाइपोपरफ्यूजनल स्टेट, ड्यू टू टॉक्सीमिया, ड्यू टू सेप्सिस, किसी वजह से भी पेशेंट जा सकता है। तो ये ब्लड वर्कअप आपने सब पेशेंट्स में करवाना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द काज। देन अपर एब्डोमिनल पेन है, अगर पेशेंट प्रीडोमिनेटली कह रहा है कि मुझे पेट में ऊपर दर्द है, इधर एपिगैस्ट्रिक रीजन में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर बता रहा है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट यू नीड टू रूल आउट, दैट इज मायोकार्डियल इस्कीमिया। उससे पूछ लें साथ ही हिस्ट्री के अंदर ही कि अगर अपर एब्डोमिनल पेन है, कि आपको पुराना कोई दिल का मसला तो नहीं है, या आप डायबिटिक तो नहीं है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है, स्मोकर तो नहीं है, पहले कोई दिल का अटैक तो नहीं हुआ है, फालिज का अटैक तो नहीं हुआ है, तो क्योंकि MI की सस्पिशन आपने बहुत हाई रखनी है अपनी, बहुत हाई, और उसका थ्रेशोल्ड इन्वेस्टिगेशन का बहुत लो रखना है आपने। ये नहीं कि चलें आप इलाज शुरू किया, असर नहीं आया तो आप कहें कि मैं MI रूल आउट कर लेता हूँ शुरू में। तो एक पेशेंट आपके पास सवेयर एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आया है, थोड़ा स्वेटी सा भी है, वॉमिटिंग भी कर रहा है, और साथ चेस्ट कंजेशन भी आ रही है थोड़ी सी, और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे छाती में भी थोड़ा सा दर्द वजन महसूस हो रहा है, और रिस्क फैक्टर्स भी देता है आपको, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव है या स्मोकर है, मेल पेशेंट है, तो आप उसकी एक ECG उसी वक्त करवा लें। इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, तो इसको डिले नहीं करना है, फ़ौरन से any patient with pain between chin till umbilicus, चेन से लेके अम्बलाइकस के दरमियान वाली एरिया में उसको गले में दर्द होता है, दोनों बाजुओं में जा रहा है दर्द, चेस्ट में पेन है, अपर एब्डोमेन में पेन है, उसको MI हो सकता है, वो कार्डिक हो सकती है पेन जो है। तो
इस टेरिटरी के अंदर पेन आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कार्डिक पेन को रूल आउट करें, ईसीजी करवाएं, कार्डिक एंजाइम्स उसको ऑफर कर दें। देन दूसरे नंबर पे एक्यूट सिवियर गैस्ट्राइटिस, सेकेंडली जो है वो एक्यूट सिवियर गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर डिजीज आ जाती है आपके पास जो। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आपने देखना है। देन पेनक्रेटाइटिस, पेनक्रेटाइटिस की सस्पिशन रखनी है आपने उस पेशेंट की, आपने फ़ौरन से उसका अमाइलेज लाइपेज लेवल भिजवा देना है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, यस अगेन मिडिल एज फीमेल हैं, फैटी हैं, बल्की हैं, फैमिली हिस्ट्री है उनकी कोलिलिथियासिस की, या टिपिकल पेन राइट अपर क्वाड्रेंट में बता रही हैं वो, और पहले भी बिलरी कोलिक उनको होता रहता है, तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस आपने सस्पेक्ट करना है। देन असेंडिंग कोलिंजाइटिस, इट हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक ट्राइएट के पेशेंट आपके पास फीवर के साथ आता है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन और जॉन्डस के साथ, तो आप एक्यूट असेंडिंग कोलिंजाइटिस सस्पेक्ट करेंगे उसके अंदर जो। एंड हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटिक एब्सेस हो सकता है, इवन हेपाटोमा हो सकता है, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये आपके पास अपर एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप फ़ौरन से पहले ईसीजी करेंगे, कार्डिक एंजाइम्स करेंगे, देन ब्लड वर्कअप आप करवा लेंगे ऐसे पेशेंट्स का। देन आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस करवाना है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के लिए। किसी हद तक आपको असेंडिंग कोलिंजाइटिस की अगर कोलिडोकोलिथियासिस का एविडेंस मिल जाता है तो आप असेंडिंग कोलिंजाइटिस भी रख सकते हैं डिफरेंशियल में। और अल्ट्रासाउंड हेपेटाइटिस में आपको इन्फ्लेमेशन मिल जाएगी, हेपेटिक एब्सेस में आपको कम्प्लेक्स मैस सा फील हो जाएगा, वहाँ पे कोलेक्शन फील हो जाएगी, मिल जाएगी। हेपेटिक मैस हेपाटोमा के अंदर भी आपको फोकल लीजन्स लिवर के अंदर मिल जाएंगे। तो अल्ट्रासाउंड इज़ द वेरी क्रिटिकल मोडेलिटी जो आपने उसी वक्त ऑफर करना है पेशेंट को और करवाना है बेड साइड। देन इट्स इफ अनकंक्लूसिव तो आप फिर सीटी एब्डोमेन पेल्विस विद कंट्रास्ट जा सकते हैं। स्पेसिफिकली पेनक्रेटाइटिस में, पेनक्रेटाइटिस का हमें आइडिया नहीं होता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा। सो आप लाइपेज लेवल भिजवाएंगे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस करेंगे इस पेशेंट का, और सीटी एब्डोमेन पेल्विस का टाइम ले लेंगे, सर्जिकल एवेल्युएशन करवा लेंगे बिकॉज एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, असेंडिंग कोलिंजाइटिस ये दोनों जो है वो सर्जिकल डोमेन में भी आती हैं, तो आपने साथ सर्जिकल एवेल्युएशन भी करवा लेनी है, स्पेशली अगर पेशेंट राइट अपर क्वाड्रेंट पेन और टेंडरनेस के साथ है। लोअर एब्डोमिनल पेन ऑलमोस्ट मेजॉरिटी काजेज लोअर एब्डोमिनल पेन की सर्जिकली होती हैं। एक्यूट अपेंडिसाइटिस, पेशेंट आपको बताता है कि पहले पेट के पेरियम्बलाइकल हो रहा था दर्द, सेंटर में पेन था, अब राइट साइड पे आके शदीद हो गया, साथ टेंडरनेस भी है, गार्डिंग भी है उसको, और हार्ट रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया उसका जो है, थोड़ा बहुत लो ग्रेड फीवर भी शुरू हो गया है, वॉमिटिंग भी शुरू हो गई है। तो आप उसका ब्लड वर्कअप करवाएं, सीबीसी में आपको ल्यूकोसाइटोसिस विद लेफ्टवर्ड शिफ्ट मिल जाएगा, आपको ईएसआर रेज मिल जाएगा आपको। अल्ट्रासाउंड के ऊपर माइट बी आपको इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स मिल जाए, लेकिन यूजुअली इनकन्क्लूसिव होता है। सीटी एब्डोमेन पेल्विस आप उसका ऑर्डर करेंगे और साथ ही सर्जिकल एवेल्युएशन करवा लेंगे फ़ौरन से पहले। अगर एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस, स्पेशली अगर ओल्ड एज है 50+ एज का मेल या फीमेल है, और वो आपके पास आते हैं राइट या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन के साथ किसी हद तक थोड़ा बहुत ब्लडी डायरिया भी है, उनको फीवर भी है, देन यू माइट सस्पेक्ट एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस। acute flare of IBD, yes, lower abdominal pain, tenderness, bloody diarrhea, ये तीन चीज़ें अगर मिलती हैं आपको, देन यू विल सस्पेक्ट एक्यूट फ्लेयर ऑफ IBD। इनका भी आप एक्सरे चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस इरेक्ट करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस करवाएंगे, और साथ ही आप ब्लड वर्कअप उनको ऑर्डर कर देंगे। इसमें स्पेसिफिकली हम स्टूल एनालिसिस लाजमी करवाते हैं विद कालप्रोटेक्टिन लेवल्स में, और प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को कोलोनोस्कोपी के लिए। लेकिन यूजुअली इट्स एन इलेक्टिव प्रोसीजर, तो हमने 24 to 36 आवर्स के अंदर करवानी होती है वो। एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस, यस, जैसे हमने सिम्टोमेटोलॉजी में देखा, अगर पेशेंट आपको कंप्लेंट करता है फ्लैंक पेन की दैट इज रेडिएटिंग टुवर्ड द ग्रॉइन, और साथ उसको फीवर भी है और साथ उसको डिस्यूरिया भी है, तो दैट पेशेंट माइट बी हैविंग एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस इज एन इमरजेंसी कंडीशन, तो इसको ऐसे पेशेंट को आप फ़ौरन से पहले अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड KUB के देखने के लिए कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई स्टोन तो नहीं पड़ा हुआ है जिसकी वजह से पायलों में जा रहा है पेशेंट। थर्ड थिंग, पेरिनेफ्रिक एब्सेस तो डेवलप नहीं हो गई है कहीं उसको जो है, तो अल्ट्रासाउंड KUB करवाएंगे और यूरिन कंप्लीट करवाएंगे इस पेशेंट का हम फ़ौरन से पहले, यूरिन कंप्लीट एंड यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी। देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यस, आखिरी तीन कंडीशंस फीमेल आती हैं तो ये आपने ऊपर पहले रखनी है, स्पेशली द पेशेंट इज इन रिप्रोडक्टिव एज। आप फ़ौरन से उसका LMP पूछें कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था उसका, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लें अगर पेशेंट इज़ नॉट श्योर ऑफ हर डेट्स। अगर पेशेंट का UPT पॉजिटिव आता है, थिंक ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी फर्स्ट,
अब सवेर लोअर एब्डोमिनल पेन है पेशेंट को, थोड़ी बहुत टॉक्सिक लुक है उसकी, वॉमिटिंग है पेशेंट को, एंड द पेशेंट इज प्रेग्नेंट, तो आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले रूल आउट करेंगे, सर्जिकल एवेल्युएशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस करवाएंगे उस पेशेंट का आप जो। अक्यूट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यस, पेशेंट एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ आता है, पेल्विक एग्जामिनेशन के ऊपर उसकी सर्वाइकल टेंडरनेस भी है, एडिनेक्सल मोशन टेंडरनेस भी आ गई उसकी, और पीवी डिस्चार्ज की कंप्लेंट भी कर रहा है पेशेंट, देन यू विल ऑर्डर द अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड पेल्विस के पाउच ऑफ डगलस में कोई कलेक्शन तो नहीं है, कोई ट्यूबियो ओवेरियन एब्सेस तो नहीं बन रहा है पेशेंट को, सल्पेंजाइटिस का एविडेंस, ओफ्राइटिस का एविडेंस, जो एंडोमेट्राइटिस का एविडेंस आपको उसमें मिल जाएगा, यू विल एडमिट द पेशेंट एंड स्टार्ट द एंटीबायोटिक्स, देन एडिनेक्सल टॉर्शन, yes torsion, if the patient previously having any cyst, तो वो cysts के अराउंड जो है वो टॉर्शन हो सकती है ओवरीज की जो है, तो adnexal torsion is another thing that you need to rule out in a patient presented to you with lower abdominal pain and tenderness. So these are the differential diagnosis. ये रटे होने चाहिए आपको ना, आपको पता हो कि डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन के साथ आया, दीज आर द 6 डिफरेंशियल्स दैट आई हैव टू रूल आउट फर्स्ट, पेरिटोनाइटिस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, रप्चर्ड एन्यूरिज्म है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है, इंटेस्टाइनल इस्कीमिया है, डीके और रीनल इनसफिशिएंसी है, these are important one. There are other causes as well, लेकिन ये these are the foremost and the most important diagnosis that must be ruled out first. Then अगर upper abdominal pain का है, always rule out MI first. Then acute severe gastritis है, पेनक्रेटाइटिस है, उसके लिए आप लाइपेज लेवल भिजवा देंगे, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, सेंडिंग कोलेंजाइटिस, हेपेटिक है, उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे पेशेंट का और ब्लड वर्कअप करवा लेंगे पेशेंट का। लोअर एब्डोमिनल पेन है पेशेंट को, इफ द पेशेंट इज फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट करें, एक्यूट पीआईडी करें, एडिनेक्सल टॉर्शन करें। अगर साथ लोअर यूरिनरी ट्रैक के सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, पायलोनेफ्राइटिस आप सस्पेक्ट करें, या साथ पेशेंट को लूज बावल्स हैं, ब्लडी डायरिया आ रहा है, अक्यूट फ्लेयर ऑफ आईबीडी सस्पेक्ट करें आप, अक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस, अक्यूट अपेंडिसाइटिस ये सस्पेक्ट कर सकते हैं आप, अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यस दैट पेशेंट माइट प्रेजेंट विद पेन एब्डोमेन, but the predominant complaint in that patient will be diarrhea, if dysentery then bloody diarrhea। तो वो हमने इस डिफरेंशियल की लिस्ट में उसको काउंट नहीं किया है कि चूंकि वो पेशेंट का प्रिडोमिनेंट कंप्लेंट एब्डोमिनल पेन नहीं होगा, उसका प्रिडोमिनेंट कंप्लेंट डायरिया होगा। तो दिस इज अ वेरी की पर्ल दैट यू हैव टू बी कीप इन माइंड व्हेन यू मैनेज द पेशेंट इन ER, that you approach the patient with a predominant symptom with which the patient has presented, not the side symptom। predominant symptom को लेके आप डायग्नोसिस की तरफ मूव करते हैं, ना कि साइड सिम्टम को लेके आप चलते हैं कभी भी। तो इसलिए हम डिफरेंशियल्स भी वो आपने जहन में रखने हैं जो इस सिम्टम के प्रिडोमिनेंट डिफरेंशियल आते हैं। तो अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हम डायरिया या ब्लडी डायरिया के डिफरेंशियल में रखेंगे, अदरवाइज नहीं। ट्रीटमेंट आप क्या शुरू करेंगे, आप यू विल एडमिट द पेशेंट इन ER, यू विल सिक्योर 2 लार्ज बोर IV लाइंस, यू विल ऑर्डर द ECG। अगर MI अपर एब्डोमिनल पेन है, MI आया है पेशेंट का, तो आप immediately ACS प्रोटोकॉल देंगे। यू विल गिव द पेशेंट 300 मिलीग्राम डिस्प्रीन, 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रिल, IV हेपरिन, and prepare the patient for primary PCI or thrombolysis in case of STEMI, अगर STEMI आता है तो। then if there are surgical causes, अगर सर्जिकल काजेज आ जाती है, जैसे मेजॉरिटी इमरजेंसी में सवेयर एब्डोमिनल पेन की काजेज सर्जिकल होती हैं जो आपके पास आती हैं, पेरिटोनाइटिस निकल आता है पेशेंट का, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन निकल आती है, रप्चर्ड एन्यूरिज्म निकल आता है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया आता है, इंटेस्टाइनल इस्कीमिया आता है आपके पास, या अक्यूट कोलिसिसाइटिस आता है, सेंडिंग कोलेंजाइटिस आता है, अक्यूट अपेंडिसाइटिस आ जाता है, डायवर्टिकुलाइटिस आ जाता है। ये सब डिफरेंशियल्स में आपने NPO कर देना है पेशेंट को, नील पर ओरल कर देंगे उसको, आप IV फ्लूइड शुरू करेंगे, 300 ml के स्मॉल बोलसेस देंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया। इमीडिएटली लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रश नहीं कर देना अपने पेशेंट्स को, 300 ml के बोलसेस दें, साथ वॉल्यूम स्टेटस, हाइड्रेशन स्टेटस असेस करते जाएं पेशेंट का जो है ना। एंटीबायोटिक कवरेज देंगे आप जो है। द बेस्ट थिंग इज स्टार्ट कि आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन 200 mg IV BD एंड मेट्रोनिडाजोल 500 mg IV TDS, इससे शुरू कर लें आप एंटीबायोटिक कवरेज जो है। देन यू विल टाइट्रेट योर एंटीबायोटिक चॉइस आफ्टर कंप्लीट एवेल्युएशन।
एनजी इंटूबेट करेंगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे, स्पेशली पेरिटोनाइटिस में, बावल ऑब्स्ट्रक्शन में, इंटेस्टाइनल इस्कीमिया में, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में, इनमें आप एनजी डाल देंगे पेशेंट को जो है। कोलिसिस्टाइटिस अपेंडिसाइटिस में आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में भी ज़रूरत नहीं होती है, एडिनेक्सल टॉर्शन में भी एनजी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर्जिकल एवेल्युएशन, यस, सर्जिकल एवेल्युएशन आपने फ़ौरन से प्लान करनी है उस पेशेंट की। सेकेंडली, इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग डी के, एनपीओ करेंगे पेशेंट को, आईवी फ्लूइड शुरू करेंगे, यू विल कैलकुलेट द टोटल फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ 24 to 36 आवर्स एंड देन उनको हम पेशेंट के हाइड्रेशन स्टेटस के अलॉन्ग जो देखते हुए फ्लूइड्स हम स्टार्ट करते हैं। डीके को हम इंशाल्लाह अलग से उसकी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। इंसुलिन पंप आप शुरू करेंगे, साथ पेशेंट को एंटीबायोटिक कवरेज देंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम डीके का ट्रिगरिंग फैक्टर जो होता है वो कोई इन्फेक्शन ही होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की करेक्शन, स्पेशली पोटाशियम की मैनेजमेंट हमने करनी होती है डीके के अंदर। देन इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग एक्यूट पैनक्रेटाइटिस और पेप्टिक अल्सर डिजीज़, आप अगेन एनपीओ कर देंगे, आईवी फ्लूइड शुरू करेंगे। जितना लॉस पेशेंट का हुआ है वॉमिटिंग की वजह से या कुछ ना लेने की वजह से मुंह से, तो आप स्मॉल बोलसेस फ्लूइड के देंगे। आईवी पीपीआई शुरू करेंगे हम 100 मिलीग्राम आईवी ओमेप्राजोल स्टैट में, देन 8 मिलीग्राम पर आवर से हम उसकी इन्फ्यूजन चलाएंगे। एंटीएमेटिक्स देंगे वॉमिटिंग के लिए, और स्वेयर पेन होती है तो हम ओपीआइड एनालॉग्स नेल्बुफिन दे सकते हैं, नेल्बिन आप दे सकते हैं स्वेयर पेन के लिए। देन if the patient has acute flare of IBD, you will NPO the patient, you will start the IV fluids again in small boluses, especially अगर patient को ongoing bleeding हो रही है, bloody diarrhea ongoing चल रहा है, तो फिर हम IV fluids जो है वो short boluses में देते हैं, और blood pressure को हम lower range में रखते हैं ताकि bleeding ज़्यादा ना हो। पल्स डोज हमने देनी है स्टीरॉइड्स की जो है, IV एंटीबायोटिक्स देना है, और कोलोनोस्कोपी के लिए प्रिपेयर करना है हमने पेशेंट को जो। The second thing we will discuss inshallah onward is pain abdomen in OPD, कि हमने OPD में किस तरह से पेन को अप्रोच करना है।